Good afternoon, everyone. Yeah, am I audible? Yeah, can any one of you please reply? Am I audible? Yes, sir. Okay, good afternoon, everyone. So, how many of you are there? I'm alone. Here alone. Okay, whether others will be joining? Yes, sir. Those will be joining. Okay, good. Whether it will be comfortable for you in English or Hindi? Sir, both Hindi English Both. mix. Okay. What about others? What about other professors? How they are teaching? The same way, They Hindi and English both? yes, sir. Both. Okay, okay, good. Okay. Yeah, Vaibhav, is the screen visible? Yes, Vaibhav. Yes, sir. Visible. Okay, okay, good. So we'll wait for some more time, okay, and then we'll start, okay? Okay, sir. No.
Okay, Vaibhav, do you know how many of you are there in the class? Like usually how many students? Usually we are like 20 plus 20 students, students. generally 9 to 10 join in the class. Okay, 9 to 10. Okay. Why they are joining this much late? Any reason? Yes. Had they like they were having any other class right now? Yeah. Hello? Yeah, yeah. Were they having any other class? No, sir. Okay. Today we are having only two classes. Okay. So shall we start then? So I'm sharing the link on the group. They are Okay, asking okay. for the. Okay, okay. Please do that. Okay, what about others? Like whether they will join or not? Yeah. Any idea? No, sir. Okay. Shall we start then? Yeah, please tell me. Shall we start? Okay, sir. Okay. So once they join, we'll revise them for also, but later on we'll do that. Okay. But now we'll start. Okay. See, I hope like in class 11, 12 also, like you might have heard about macroeconomics. Okay. And moreover, like, yeah, one more person has joined. Okay. Guru Raj, am I audible to you? Yeah. Guru Raj, am I audible to you? Yes, sir. Okay, good. Okay, okay, very good. Okay, they'll keep on coming. So we'll continue our class. Okay. Wherever you feel difficulty, please tell me to stop. Okay. I'll stop over there and I will teach you again. Okay, whatever I have taught. If you have any doubt, please let me know. I'll clarify that doubt. Do not hesitate to ask any doubt. Okay. Just feel free to ask any doubt. And if you're not understanding in English, tell me. I Okay, will teach you in Hindi also. sir. Okay. Okay. If my voice is not audible, then also you can tell me. Okay. Any problem, you just tell me. Okay. I'll stop over there and then I'll teach you again. Okay. From there. Okay. Now, see, you all know that we people are going to learn about module 1, right? And under this, we are going to learn a macroeconomics, right? The subject is macroeconomics. Now, when we are talking about microeconomics, under this module, okay, there are 3 different topics you can see that we have to cover. One is introduction to macroeconomics, measures of economic performance, and the third is national income. Okay.
Now, I don't know what you have studied before, how you have done in 11th, 12th. There also in 12th, you have some macroeconomics. And when you go to international board, there also you have to study about macroeconomics. But just forget about everything. Today, whatever is there, I'll teach you from the basics and you'll understand everything. Okay. There will be no doubt, okay, about macroeconomics from now onwards. So listen very carefully whatever I am teaching. Okay. सो आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुनिए एकदम, ठीक है? तो तभी जाके आप लोगों को सारा डाउट क्लियर होगा। अगर आज आप लोगों ने अच्छे से नहीं सुना तो होता है ना, मतलब आज एक कंफ्यूजन है तो फिर कल दूसरा भी कंफ्यूजन निकल के आ जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए, जो भी डाउट होता है तुरंत पूछिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर दूं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे वो दो ही टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। नेशनल इनकम जो है हम लोग दूसरे क्लास में उसको कवर करेंगे, ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो था, इसको जो है ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना? बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसको इंपॉर्टेंस मिला कहाँ से, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, ठीक है? मैं थोड़ा सा उस बैकग्राउंड के पीछे आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। तो आप लोगों को सब पता है 1930 में, ओके, डिप्रेशन आया था। देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन 1930 में यूएसए में, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी वो डिप्रेशन आया था। तो अभी अब जैसे मैंने डिप्रेशन वर्ड यूज किया तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये भी पता ना हो कि डिप्रेशन होता क्या है, ठीक है? डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है या ऐसा एक माहौल है इकोनॉमी के अंदर में या कोई भी कंट्री के अंदर में, जहां पे क्या होता है ना, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बेरोजगारी दर जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कम होने लगता है, ठीक है? तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, मतलब बहुत ही भयानक सिचुएशन है ये, मतलब लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है, लोगों के पास इनकम है ही नहीं, ठीक है? लोग मतलब उधार ले लेके जो है कंट्री में मतलब बहुत ज्यादा दब चुके हैं, और लोगों के पास खर्च खर्च करने के लिए, कंजम्पशन के लिए पैसा ही नहीं बचा हुआ है इकोनॉमी में, ऐसा कंडीशन है। तो 1930 में जब डिप्रेशन आया था तो उस टाइम पे देखो दो तरीके के थॉट्स हुआ करते थे यूजुअली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एक क्लासिकल थॉट होता था और दूसरा होता था केंजियन थॉट का, ठीक है? ये जो क्लासिकल वाले थे, अब क्लासिकल मतलब देखो, क्लासिकल जब मैं बोलता हूँ तो इसके अंडर में कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट आते हैं जिन जो मतलब क्लासिकल थॉट रखते हैं और उनके आइडियाज कुछ और थे, और जब मैं केंजियन इकोनॉमिस्ट बोलता हूँ उनके आइडियाज कुछ और थे। क्लासिकल और केंजियन के आइडियाज एक दूसरे से कुछ ही चीजों में मिलते थे, बाकी बाकी चीजों में नहीं मिलते थे। अभी ध्यान से सुन लो, उसके बाद जब डेप्थ में पढ़ाऊंगा तब सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये, जब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ये टॉपिक जो आप देख रहे हो ना, जो ये सब्जेक्ट उभर के आया है कहीं ना कहीं से, केन्स का बहुत बड़ा रोल था सबसे पहली बार, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्लासिकल ने जो भी थ्योरी दिया था कि ये जो डिप्रेशन हुआ था 1930 में यूएसए में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में जो डिप्रेशन हुआ था, तो क्लासिकल ने एक मतलब बोला था कि ये डिप्रेशन आया क्यों था, रीजन दिया था उन्होंने, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करूंगा और डिप्रेशन के बारे में भी, ठीक है? लेकिन अभी उसमें क्लासिकल की थ्योरी में जाना नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है जन्म हुआ कहाँ से, आया कहाँ से ये सब्जेक्ट। तो क्लासिकल ने जो दिया था, जो सोल्यूशन दिया, जो थ्योरी तैयार करके दिया, फिर उसको ना केंजियन वालों ने, केंजियन इकोनॉमिस्ट ने, एक बहुत बड़े केंज इकोनॉमिस्ट थे, उसका नाम ही था केंजियन, केंज, ठीक है? तो केंज ने जो सोल्यूशन दिया ना, और जब सोल्यूशन पता लगाया कि वास्तव में मतलब ये हुआ क्यों था, डिप्रेशन आया क्यों था, तो केंज की सारी थ्योरी जो है निकल के आई, और केंज ने ये प्रूव कर दिया कि क्लासिकल वालों ने जो भी बोला था गलत बोला था, और जो ये मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है ये इकोनॉमी के साथ। और इकोनॉमी को अगर इस तरीके से चलाया जाए, इस तरीके से बाहर निकाला जाए तो बाहर निकल सकता है। तो केन्स कहीं ना कहीं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को वहां से स्टार्ट करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस 1930 के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? ये एक नॉर्मल बैकग्राउंड है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? अब केन्स ने क्या बताया और क्लासिकल ने क्या बताया था, ये जो चीज बताया था ना, ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी अब हम लोग आवर टॉपिक पे रिटर्न हो जाते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ सी, there are two type of things when you deal with economics. Although like there are many branches, there are like monetary economics, there are like home economics, there is like microeconomics, macroeconomics, but basically economics is divided into two different parts.
One is microeconomics and the other is macroeconomics. Okay, now you see, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर एक आपको एक घर के बारे में पढ़ना है ना, जैसे एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग कितना कमाते हैं, उनका खर्चा कितना है, वो लोग रोज कितना खर्च करते हैं या महीने में कितना खर्चा करते हैं, अगर इस चीज को, इस विषय को आपको पढ़ना है ना, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के खर्चे से डील करती है, कंजम्पशन से डील करती है, इन्वेस्टमेंट से डील करती है. ठीक है. अगर आपको एक मार्केट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उस मार्केट में जैसे सब्जी सब्जी के भाव क्या चल रहे हैं, पिछले साल क्या थे, इस साल क्या है, बस एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में पढ़ना है ना, कि उसके प्राइसेस कैसे मूव हो रहे हैं. ठीक है. कल आलू का रेट क्या था, आज आलू का रेट क्या है, एक मार्केट में. मैं एक मार्केट की बात करता हूँ, जैसे किसी भी सब्जी मंडी का उठा लो, उस सब्जी मंडी का अगर आप बात करते हो तो वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे. लेकिन आप जैसे अब आप बात करो कि यार पूरे देश में जो ये आलू का भाव है, ये टमाटर का भाव है, क्यों बढ़ रहा है, तो ये चीज आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है. अब जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे ध्यान से सुनना. जैसे मैं बोलूंगा कच्चा तेल, जो कच्चा तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसका भाव क्यों बढ़ रहा है, इसका जो रेट है पर बैरल, जो रेट है इसका, कच्चा तेल जो हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं रशिया से, ठीक है, उसके बाद अजरबैजान से, उसके बाद ईरान से, इराक से, जो कच्चा तेल हम लोग लेके आते हैं, फिर इसको हम लोग प्रोसेस करके जो फिर पेट्रोल डीजल ये सब जो बनाते हैं बाद में, जो फिनिश्ड गुड बना के जो बेचते हैं, तो ये कच्चा तेल का भाव बढ़ता है घटता है. अगर इस विषय में आपको पढ़ना है तो आपको फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आना पड़ेगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा आपको कि इसका भाव क्यों बढ़ रहा है. ठीक है. समझ में आ रहा है ना, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है. जब आपको कोई भी चीज बड़े लेवल पे पढ़ना है ना, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है. ठीक है. अब जैसे कि अब एक एक पर्टिकुलर मार्केट, जैसे आपके घर के आसपास अगर कोई सब्जी मंडी है, वहां का मंडी के बारे में आपको जानना है, तो वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो. कोई हाउस होल्ड के बारे में जानना है. अब देखो, एक घर में सपोज एक घर में दो बेरोजगार है, ठीक है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि पूरा देश बेरोजगार आदमी से भरा हुआ है. ठीक है. आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा घर, पूरा देश जो है बेरोजगार आदमी से भरा हुआ है, आप ये नहीं बोल सकते. लेकिन हाँ, आप ये अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे 30% है, कोई भी देश में, कोई भी देश में 30% है, तो आप ये बोलोगे सच में देश की स्थिति बहुत खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 30% से है. समझ में आ रहा है. अब कोई एक घर को देख के आप ये पूरा इकोनॉमी का तो जायजा नहीं बता सकते, पूरा इकोनॉमी का क्या चल रहा है ये कभी भी आप नहीं बता सकते हो. तो उसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. और जो रीजन आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलता है, ठीक है, वो रीजन आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं देगा. ठीक है. अगर दो घर में अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हुए हैं, दो लोग अनएम्प्लॉयड है एक घर में, तो उसका रीजन कुछ और हो सकता है. ठीक है. हो सकता है कि मतलब वो लोग कम पढ़े लिखे हो सकता हो कि उन लोगों ने मतलब नौकरी नहीं ढूंढी हो अच्छी तरीके से, ये रीजन हो सकता है. लेकिन देश में अगर 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो इसके रीजन फिर दूसरे होंगे. ये जो रीजन्स निकल के आएंगे, ये मैक्रो इकोनॉमिक रीजन्स होंगे, जिनके वजह से वो अनएम्प्लॉयड है. आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ. समझ में आ रहा है. इसी से क्लियर होगा. जो ये एग्जांपल दिया है ना मैंने, इसको ध्यान से सोचना. ये सोचने के बाद जो भी मैंने पीपीटी में दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ोगे या बुक भी पढ़ोगे, कोई भी बुक पढ़ोगे, तो 100% है कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए इसके बाद. ठीक है. अब और देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पीपीटी में भी. क्या लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी. मैंने बताया ना, सारा इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है. द मार्केट्स, not only one particular market, I'm talking about all the markets, about businesses, about consumers, about governments behave, how they behave. Macroeconomics examines economy wide phenomena such as inflation. अब देखो, इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ तुम किसके विषय में पढ़ोगे, एक हाउस होल्ड के विषय में पढ़ोगे या एक पूरा इकोनॉमी के से रिलेटेड पढ़ोगे, पूरा एक इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ोगे, राइट. व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज रिलेटेड टू अ होल इकोनॉमी, इट इज रिलेटेड टू कंट्री, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी फैमिली, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ द होल कंट्री, राइट. जब आप जीडीपी के बारे में बोलोगे, तो जीडीपी इज द total output produced in the country within the domestic territory of a country. Okay, so जब आप जीडीपी के बारे में पढ़ोगे, तो आप वही पढ़ोगे जो पूरा देश का, जो रेसिडेंट प्लस जो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं, जो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करते हैं, उनका आउटपुट को लोगे आप. ठीक है. उनका जो भी आउटपुट का वैल्यू होगा वो लोगे. ठीक है. अब अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स इन टोटलिटी.
ठीक है, इन टोटलिटी मतलब आप संपूर्ण तरीके से पढ़ोगे इसको। ऐसा नहीं कि एक तो सब्जेक्ट पढ़ लिया और मतलब दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, नहीं। जब आपको, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया इसलिए हो रहा है, या इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे जितने सारे भी वेरिएबल्स आप पढ़ोगे ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का वजह एम्प्लॉयमेंट भी होता है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का वजह जो होता है वो नेशनल इनकम के बढ़ने से भी होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है इसलिए हो जाता है क्योंकि नेशनल इनकम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सपोज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे 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 केस में भी हो सकता है ना, सपोज नेशनल इनकम कंट्री की बहुत ज्यादा हो गई, अब जो है लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, वो लोग अब काम नहीं करना चाहते हैं। वो लोग अब जो अपना टाइम होता है, सपोज वो 8 घंटा काम करते थे, तो वो बोलेंगे नहीं, हम लोग अब 8 घंटा काम नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, अब हम लोग 4 ही घंटा काम करेंगे। तो उनका जो ये लेबर था, लेबर LABOUR लेबर, ये जो लेबर टाइम था जो वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 4 घंटा से घट गया ना। इसका मतलब वो लोग 4 घंटा अनएम्प्लॉयड रहे। पहले तो 8 घंटा एम्प्लॉयड रहते थे, लेकिन अब ये 4 घंटा अनएम्प्लॉयड रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस मच। समझ में आ रहा है ना ये कैसे रिलेटेड है? ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब बात करता हूँ ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। जैसे एक मार्केट ले लिया, एक मार्केट में जो है सब सब्जी मंडी ले ली, सब्जी मंडी में अब आलू टमाटर के प्याज ये इसके भाव कैसे डिसाइड होंगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। ठीक है, लेकिन जब अब तुम्हें इनकम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना हो, तुम्हें इन्फ्लेशन के बारे में जानना हो, तो ये बताएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुम कोई भी सब्जी मंडी में जाओगे तो तुम्हें वहां पे जो है सुबह सुबह वहां पे तुम देखोगे, वहां पे मतलब एक मार्केट लगती है और उस मार्केट में प्राइस डिटरमाइंड होता है। वो सब्जी मंडी का प्राइस जो होता है तुम देखोगे कुछ ही एरिया तक सीमित रहता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ सपोज दिल्ली, तो दिल्ली का प्राइस और बिहार का प्राइस जो है डिफरेंट होगा ना सब्जी मंडी के एस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में थोड़ा महंगा मिल रहा हो और बिहार में थोड़ा सस्ता मिल रहा हो प्याज, ऐसा होता है काफी बार। ठीक है, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो। लेकिन ऐसा हो सकता है सपोज हम लोग कहीं से प्याज इंपोर्ट करवा रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, सपोज रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, या सपोज हम लोग सऊदी से इंपोर्ट कर रहे हैं, या कोई भी कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं माल वहां से, फिर वहां से ही प्राइस बढ़ के यहाँ पे आ रहा है, हम लोग कंज्यूमर है उस गुड के। तो अगर इस विषय में आपको पढ़ना है तो आपको मैक्रो लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? या एवरीथिंग इज ऑल राइट टिल दिस मच? ओके, ओके। नाउ ये डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कुछ इकोनॉमिस्ट ने दिया था, ये सब मतलब वही जो मैंने बताया है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सब आप लोग खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट है स्कोप, हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। स्कोप या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ये देख लेते हैं पहले। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। अब एग्रीगेट्स का मतलब क्या हो गया? टोटल, सम टोटल। ठीक है, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग इन इंडिविजुअल, यू विल स्टडी एवरीथिंग कलेक्टिवली. So macroeconomics deals with the study of economy as a whole. It is concerned with the aggregate concept such as national income, national output, national employment, general price level, business cycles. ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो आपको बिजनेस साइकिल्स के बारे में जानना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आज मंदी है तो कल क्या बोल, आज मंदी है सपोज, फॉर फास्ट 3 to 4 months मंदी हो रखा था, मंदी हो रखा था मतलब चीजों के दाम बहुत ज्यादा कम थे। ठीक है, लेकिन कल 2-3 महीना बाद जब आप देखोगे तो प्राइस प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ा बढ़ गए। तो क्या हो रहा है, ये एक साइकिल बना रहा है, कभी ये ऊंचा हो रहा है, कभी ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक लाइन आ रहा है, इनकम का जो लाइन है, कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे आ रहा है। ये जो साइकिल्स के बारे में पढ़ना है ना आपको, नेशनल इनकम क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, तो आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। ठीक है, income theory, macroeconomics studies the concept of national income, its different elements, method of measurement, and social accounting. Macroeconomics deals with aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of fluctuations in the national income that lead to business cycle. ये आपको बताता है ये जो fluctuations हो रहा है नेशनल इनकम में क्यों हो रहा है, और इसकी वजह से बिजनेस साइकिल्स क्यों आ रहे हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में पढ़ना है तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेनेवर जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, और डिफ्लेशन का मतलब होता है व्हेनेवर जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या हो गया, देखो देखो जब भी इन्फ्लेशन नापना होता है ना, तो देखो ये पूरा कंट्री में कितने सारे गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं, एरोप्लेन होता है, इवन पिन होता है, बहुत सारे गुड्स होते हैं, लेकिन आप सारा गुड्स को तो नहीं ले सकते ना। तो क्या करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट गुड्स होता है, और
और वहां पे देखो जो भी ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, सपोज नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो देश विदेश में जो ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, तो वो सारा गुड्स को कंसिडर नहीं करता है। उन लोगों ने लिस्ट बनाया हुआ है कि सपोज ये 10 to 15 गुड्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गुड ऐसा भी हो सकता है, सपोज राइस हो जाएगा, दूसरा गुड व्हीट हो जाएगा, तीसरा गुड आपको ऑयल हो जाएगा, ठीक है, चौथा गुड आपको कुछ और प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर इन सब का जो प्राइस का टोटल होता है, इनको ऐड करने के बाद इनका एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकलने के बाद देखा जाता है कि इन्फ्लेशन है कि घट रहा है। अगर वो एवरेज बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन है, अगर वो एवरेज घट रहा है तो डिफ्लेशन है। सो सिंपल है दैट। ओके, बहुत ही सिंपल है। आप ये जो सब्जेक्ट है इसको आप अपने रियल लाइफ से भी रिलेट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप डेली पेपर पढ़ते हो तो भी आपको समझ में आएगा कि आपका जो ये बुक है, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये न्यूज़पेपर वगैरह से कैसे रिलेटेड है। जो वो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं वो भी आपको समझ में आने लगेगा जब आप ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। ऐसे जनरली आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कोई भी टर्म्स वगैरह, लेकिन आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। अब जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसमें आप एक मार्केट, मैंने पहले बताया था, इसमें आप एक मार्केट के बारे में नहीं पढ़ोगे, इसमें आप डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ोगे। एक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट होकर जो प्राइस निकल के आता है वो एक मार्केट के लिए आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन आपको आपको जैसे अब जैसे कि अब तेल का मार्केट है, तो तेल का मार्केट कहीं ना कहीं आपको ऑटोमोबाइल का मार्केट को भी इम्पैक्ट कर रहा होगा। जो अगर तेल का दाम बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल का डिमांड जो है घट जाएगा। तो ये दोनों में रिलेशन कौन बताएगा? ये दोनों में रिलेशन आपको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से पता चलेगा। मतलब हर एक मार्केट का आपको इक्विलिब्रियम चाहिए। अब यहाँ पे प्राइस डिटरमाइंड होगा ऑयल का इस मार्केट में, तो आपको दूसरे मार्केट में कार्स की डिमांड और सप्लाई से कार का प्राइस पता चलेगा कि कार्स या ऑटोमोबाइल्स का प्राइस घटने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं। तो ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बताते हैं, मतलब एक साथ काफी सारे इक्विलिब्रियम बताता है। लेकिन अब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वो आपको एक ही इक्विलिब्रियम, एक ही मार्केट के बारे में बताएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टिल दिस मच? या इज इट फाइन? ओके, नाउ इंटरडिपेंडेंस, मैंने क्या बोला, देखो एक मार्केट और दूसरा मार्केट रिलेटेड है, ठीक है ना। एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल रिलेटेड है, ठीक है। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, ये सब क्या है? ये सब रिलेटेड है। अगर इनकम बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इनकम बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा रिलेशन होता है इन लोगों में। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इंटरडिपेंडेंस कैसे है इन सब वेरिएबल में। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आप पढ़ते हो इनमें इनमें जो है इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है। अब देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई भी कंट्री में आउटपुट बढ़ जाता है, आउटपुट क्यों बढ़ेगा? आउटपुट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम लोगों ने लोगों को बेरोजगार, मतलब रोजगार ज्यादा दिया है। तो रोजगार ज्यादा दिया मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने बढ़ाया, ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय किया, उसके बाद आउटपुट बढ़ गया। आउटपुट क्या है? आउटपुट को बेचने के बाद आपको पैसे आएंगे ना, वही पैसे तो है नेशनल इनकम। फिर ये जो पैसे आएंगे आपको, जो आपने आउटपुट बढ़ाया, लोगों को एम्प्लॉय किया, फिर आपको पैसे आ गए, आपने खूब सारा पैसे कमा लिया। ये पैसे कमाने के बाद आप क्या करोगे? पैसे कमाने के बाद फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। जब ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये फिर एज ए इनकम ही जाएंगे ना इन लोगों के हाथ में। तो इनका इनकम क्या हो गया? इनका इनकम भी बढ़ गया, ठीक है। इनका इनकम बढ़ने के बाद अब एक तरफ से जो प्रोड्यूसर्स वगैरह है वो आउटपुट बढ़ाने के बाद प्रॉफिट्स भी तो कमाएंगे। जब उनके हाथ में प्रॉफिट्स आएगा तो इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ेगा और धीरे धीरे प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। देखो कैसे ये सारे वेरिएबल्स रिलेटेड है, ठीक है। आउटपुट के बढ़ने से ही आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, आपका इनकम बढ़ गया, प्राइस लेवल बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी बढ़ गया। कितना सारा रेपरकशंस इम्पैक्ट है, देखो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, levels of output, employment, and eventually level of economic growth, ठीक है। I hope you are understanding, right? Okay, now दूसरा आपको पता चलेगा लंपिंग मेथड के बारे में। ये लंपिंग मेथड क्या होता है? द लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी rather than its part, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोटलिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रीज, ठीक है। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है, पता है, ये प्रोफेसर
बॉटलिंग का, जो ये बताती है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको सच में जानना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वास्तविक में है क्या, तो ये डेफिनेशन को आप लोग कम से कम 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप अगर एक पेड़ के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट में एक पेड़ लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। और आप पूरा वो फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहते हो कि फॉरेस्ट कितना घना है, फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, कौन सा पेड़ फल देता है, कौन सा पेड़ फल नहीं देता है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। वही ये बता रहा है। लंपिंग मेथड का मतलब यही हो गया, दैट मीन्स यू आर नॉट ओनली डीलिंग विद वन पर्टिकुलर पार्ट, यू आर स्टडिंग द होल थिंग्स, ओवरऑल थिंग्स। आपको सब कुछ जानना है कि ये सारे वेरिएबल्स कैसे इंटर रिलेटेड है, ये सारे वेरिएबल मूव कैसे कर रहे हैं एक डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। ग्रोथ मॉडल्स, और ध्यान से सुना, ग्रोथ मॉडल्स होते क्या है। और फॉर एग्जांपल, चाइना का ग्रोथ मॉडल दूसरा होता है, हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ मॉडल दूसरा है। हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ मॉडल कैसा था, कुछ साल पहले हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। लेकिन चाइना का 1970 के बाद कैसा ग्रोथ मॉडल था, उनका ग्रोथ मॉडल ऐसा था कि उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा किया, इंडस्ट्रीज वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन हमारा, तुम लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, इवन 9th के सब्जेक्ट में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है ग्रीन रेवोल्यूशन। हम लोग जो है मतलब एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, हमारा ग्रोथ मॉडल ऐसा था। तो ये सब ग्रोथ मॉडल्स बनाने का जो तरीका, ये पता कहाँ से चलता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज आपका वीट का प्रोडक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो वीट का प्रोडक्शन है, अब ग्रोथ मॉडल होता क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो वीट का प्रोडक्शन है, ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर पे डिपेंडेंट होता है, वाटर पे दैट मीन्स रेनफॉल पे, क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होता है, वीट का सीड्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वीट का क्या बोलता है, सीड का प्राइस पे भी डिपेंड होता है। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। इसी का, जैसे वीट हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, वीट हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई। आपको वीट के बारे में पता लगाना है कि इसका प्रोडक्शन होगा क्या, मतलब अगले साल अगर मैं इतना सीड्स डालूंगा, इतना फर्टिलाइजर डालूंगा, इतना रेनफॉल होगा, मौसम ऐसा रहेगा, तो मुझे वीट में कितना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये जानना है तो आपको एक तो ग्रोथ मॉडल बना के तैयार करना पड़ेगा। जैसे रेनफॉल कम हो गया तो क्या होगा, सॉरी, वीट के लिए तो रेनफॉल नहीं चाहिए, लेकिन रेनफॉल अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वीट का जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, ठीक है। वीट का जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। तो देखो, वीट का जो प्रोडक्शन है वो रेनफॉल पे कैसे डिपेंडेंट है। तो ये सब फैक्टर्स को लेके, ये सब वेरिएबल्स को लेके एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है। तो जो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वाई जो आपका आउटपुट है, डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। तो यही रेनफॉल सपोज इतना होगा, सपोज 100 होगा या 90 होगा, जितना भी होगा, ये सबसे एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं इकोनॉमिस्ट वगैरह, और वो लोग अप्लाई करते हैं अपने इकोनॉमी में ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स, ठीक है। अप्लाई करने के बाद उनको पता चलता है कि उनका आउटपुट क्या होगा, उनका आउटपुट ग्रोथ क्या होगा, ठीक है। ओके, ओके, इज दिस क्लियर टिल दिस मच। ग्रोथ मॉडल्स के बारे में आपको समझ में आ गया, या एम आई ऑडिबल? Yes, ओके, what is the time now? I'm not able to see here. What is the time? 1:34. Okay, okay. just a second. ओके, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। लंपिंग मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल प्राइस लेवल। देखो, जनरल प्राइस लेवल के बारे में जानना है, मैंने बोला ना, ये जो है आपको एवरेज प्राइस लेवल के बारे में बताता है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारा गुड्स को ले लिए, सारा गुड्स तो आप ले भी नहीं पाओगे, कंट्री में कितने सारे गुड है आपको पता भी नहीं है, ठीक है ना। मोबाइल्स हो गया, चार्जर हो गया, बॉटल हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, इतने सारे गुड्स को लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मेन गुड्स होता है, जो मतलब इंसान के लाइफ को डे टू डे इम्पैक्ट करता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल ही ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, तो 10, 15 या 20, 25 ऐसे गुड्स डिसाइड होते हैं जिनसे ये जनरल प्राइस लेवल डिसाइड होते हैं। और जनरल प्राइस लेवल आप डिसाइड कहाँ करोगे, आप डिसाइड करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ओके, आपको जनरल प्राइस लेवल के बारे में जानना है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशंस के वजह से ही पता कर सकते हो, वरना आप पता नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी ओरिएंटेड। अब जैसे कि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहीं से पढ़ा देता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स
is a policy oriented science. It suggests suitable economic policies to promote economic growth, general employment, control of inflation and deflation. अब आपको क्या बोलता है, कंट्री में इन्फ्लेशन है, कंट्री में डिफ्लेशन है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्राइसेस बहुत ज्यादा घट रहे हैं कभी कल, तो क्या करोगे, उसको कैसे कंट्रोल करोगे, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाना पड़ेगा ना। कहाँ से बनाओगे उसके लिए पॉलिसी? उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे पॉलिसीज दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो सरकार क्या करेगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो मनी सप्लाई कम कर देगी। मनी सप्लाई कैसे कम करेगी सरकार? गवर्नमेंट जो है आरबीआई को इंस्ट्रक्ट करेगी, या आरबीआई खुद से, आरबीआई के पास ऑटोनॉमी है, आरबीआई खुद से ही मनी सप्लाई को कम कर देगी। मनी सप्लाई को कम कैसे करेगी? जो भी बॉन्ड्स वगैरह है आरबीआई के पास, वो बॉन्ड जो है सेल करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आरबीआई के पास बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो सेल करना स्टार्ट कर, लोगों के पास पैसे होंगे हाथ में, वो पैसे से लोग क्या करेंगे, आरबीआई के बॉन्ड्स खरीद लेंगे। पैसे कहाँ चला गया? पैसे लोगों के हाथ से चला गया आरबीआई के पास। तो पैसे तो एक कहीं संचित जगह पे जाके वो संचित हो जाएगा ना, एकोमुलेटेड हो जाएगा वो सारा पैसा। तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, लोगों के हाथ में जैसे पैसा कम हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे 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 कुछ दिन कुछ महीनों के बाद इन्फ्लेशन जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे पॉलिसी ओरिएंटेड डिसीजन आपको लेना है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टूल्स है, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया गया है, ये यूज करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे डिप्रेशन ही है, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालना है? बहुत ज्यादा दाम कम हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दाम कम हो रहा है, सामान के बहुत ज्यादा दाम कम हो रहा है, भाव गिर रहा है बहुत सारा सामान का, उसके बाद लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, ये एक डिप्रेशन का सिचुएशन है। इसमें क्या करेगा सरकार? इसमें वही है, फिर मनी सप्लाई बढ़ा देगा, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, या टैक्सेशन रेट को कम करेगा, वो सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या इम्पैक्ट होता है, ये बस एक आउटलाइन है। This is only an outline. When I'll be teaching about government monetary policy, okay, sorry, RBI monetary policy and government expenditure policy and all, I'll be teaching all those things. Okay, this is just an outline. This is just the basics that we are talking. Okay, now helpful in understanding the functioning of an economy. Modern economic system have become more complex. One cannot get clear, correct picture of the functioning and composition of economy as a whole on the basis of microeconomics. ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी के बारे में जानना है, इकोनॉमी कैसे फंक्शन करता है, वही बात यहाँ पे आ रहा है। देखो, जब मैंने बोला ना क्लासिकल और केंजियन, क्लासिकल ने तो जो सोल्यूशन दिया था ना, वहां उस टाइम पे 1930s में भी डिप्रेशन आया था। क्लासिकल ने जो सोल्यूशन दिया था वो एक इकोनॉमी को देखते हुए दिया था, एक इकोनॉमी को, जैसे यूएसए वाले को और यूरोपियन कंट्रीज को बोल दिया था कि तुम गवर्नमेंट को सजेशन दे दिया था कि तुम कुछ भी मत करो, सारा मार्केट के ऊपर में छोड़ दो। उनका सोल्यूशन ये था, मार्केट अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है, उनका सोल्यूशन ये था क्लासिकल वाले का। लेकिन केंजियन वाले का था नहीं, कुछ कुछ नहीं करने से तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे बढ़िया ये है कि या तो हम लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी यूज करना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट को जो है कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, या तो सेंट्रल बैंक को कुछ करना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट में वहां पे क्या किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, ठीक है ना। और यूएसए के दो ऐसे प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने 1930s के बाद 1965 में भी और 1970s के बीच में भी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया। और उन लोगों ने सच में ये देखा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से यूएसए का इकोनॉमी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह बाहर निकले डिप्रेशन से। वरना जो क्लासिकल बोल के गए थे उनपे वो लोग चल रहे थे काफी सालों तक, मतलब 1930s के बाद भी 4-5 सालों तक जो है वो लोग डिप्रेशन में ही फंसे हुए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। तो वहां पे यही बोला गया है, अगर आप एक मतलब आप सोचो कि मुझे एक इकोनॉमी पे ही फोकस करके करना है काम, तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वो जो सोल्यूशन दे रहे थे क्लासिकल वाले, वो एक इंडस्ट्री से रिलेटेड था, लेकिन ये जो डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम था ये पूरा होल इकोनॉमी का था। डिप्रेशन से निकलने के लिए केंजियन ने जो सोल्यूशन दिया वही बाद में काम आया, ठीक है। क्लासिकल वालों ने जो सोल्यूशन दिया वो तो बिल्कुल भी काम नहीं आया। वहां पे क्लासिकल का जो भी थॉट प्रोसेस था सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? या इज इट क्लियर? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? सर हेलो सर, हाँ साउंड आ रहा है? सर जी जी बोलिए। डिप्रेशन और रिसेशन दोनों अलग है कि सेम है? नहीं देखो, डिप्रेशन जो है बहुत ही भयानक रूप है रिसेशन का, ठीक है, मतलब बहुत ही बदतर स्थिति है। फॉर एग्जांपल रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में ये होता है कि आपके जो प्राइसेस है ना, प्राइसेस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट,
ये तीन वेरिएबल प्राइसेस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ये घटते जाते हैं, ये घट रहे होते हैं रिसेशन में। लेकिन ये घट के एकदम जब नीचे चले जाए ना, एकदम नीचे चले जाए, जैसे एम्प्लॉयमेंट जैसे नेगेटिव में चले जाए, प्राइसेस प्राइसेस भी घट जाए एकदम, उसके बाद इन्फ्लेशन ये प्राइसेस घट जाए, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहे ही नहीं, बहुत ज्यादा मतलब बदतर से बदतर स्थिति हो जाए, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। रिसेशन हो गया आपको घटता हुआ समय, मतलब एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, प्राइसेस घट रहा है, रिसेशन तब बोलेंगे। जैसे अभी कोविड की वजह से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कोविड की वजह से रिसेशन आया था, डिप्रेशन नहीं आया था। लेकिन वही रिसेशन अगर 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू रहता ना, तो सारा इकोनॉमी जो है वर्ल्ड का सारा डिप्रेशन में चले जाते। दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बोथ इंडिकेट्स द केस ऑफ वेरी हाई ऑन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, लो लेवल ऑफ इनकम, डिक्रीजिंग प्राइसेस, ठीक है, दोनों यही यही चीज दर्शाते हैं। लेकिन बस एक ही डिफरेंस है, एक है बहुत ही भयावह, मतलब इतना डेंजरस है डिप्रेशन कि मतलब भुखमारी तक आ जाती है, इतना डेंजरस है, भुखमारी तक भी आ जाएगी, समझ लो ऐसा होता है डिप्रेशन में। लेकिन रिसेशन में ऐसा होता है ये सब घट रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी होता है जैसे साल भर में ना, जैसे 1 साल का पीरियड ले लो और इसको क्वार्टर वाइज डिवाइड कर दो, तो 4 क्वार्टर हो जाएंगे। इन 4 क्वार्टर में ऐसा भी हो सकता है कि कई क्वार्टर में, जैसे 1-2 क्वार्टर में रिसेशन भी आ जाए, ठीक है। अभी तुम देखो कि फॉर एग्जांपल कुछ महीने पहले भी यूएसए में रिसेशन चल रहा था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा हो गया था वहां पे। लेकिन ये इकोनॉमिस्ट वगैरह बता देंगे कि हाँ ये जो पीरियड है ये डिप्रेशन का पीरियड है, और ये जो पीरियड है ये रिसेशन का ही पीरियड है, अभी डरने का जरूरत नहीं है जब रिसेशन चल रहा है तो। और रिसेशन रहते रहते ही आप जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसीज वगैरह यूज कर लोगे, तो आप रिसेशन से बाहर जा सकते हो, निकल सकते हो, और डिप्रेशन में जाने का आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके सर, समझ आ गया। ओके। नाउ नाउ ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो वही देखो, जब मैंने क्लासिकल और केंजियन के बारे में बताया ना, तो क्लासिकल ने सोचा कि हाँ ठीक है, एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन दिया था। लेकिन केंज ने बोला था देखो तुमने जो सोल्यूशन दिया है, क्लासिकल वाले को बोला कि तुमने जो सोल्यूशन दिया है ना, ये एक इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट बैठता है, लेकिन ये पूरा इकोनॉमी के लिए नहीं बैठता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? इसीलिए पूरा इकोनॉमी को देख के जो है एक डिसीजन या एक पॉलिसी निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये डिप्रेशन से हम लोग बाहर निकल पाएंगे। और सच में ये कारगर रहा। जब केन्ज ने अपना पॉलिसी दिया, जब केन्ज ने अपना इनकम एम्प्लॉयमेंट का थ्योरी दिया, तो सच में वो काम किया। ठीक है ना, वो जो थ्योरी उन्होंने दिया था वो काम किया। ठीक है। अब formulation of economic policy, while making policies government depends on the aggregate statistics of economic forces like national income. Please let me know if it's 1, okay, 1 PM से पहले पहले मुझे inform कर देना, ठीक है? ठीक है, is it fine? Okay, okay. Now you see, मैंने बोला आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे हम लोग बजट बनाते हैं ना, तो बजट बनाने के टाइम पे ये किसको, मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे कौन सी पॉलिसी, कौन से सेक्टर में कौन सी पॉलिसी लेके आनी है, ये सब कहाँ डिसाइड होगा? ये सब तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स यूज कर ही डिसाइड होगा ना। सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ लाइक प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, जो भी है ये सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तुम्हारे इकोनॉमी में जितने सारे भी प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बट एट मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, ठीक है। लेकिन अब जब पूरा देश का बात हो, पूरा इकोनॉमी का बात हो, तो आपको जो है कहाँ से सोल्यूशन लेना पड़ेगा? यही मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से ही सोल्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, ऑलरेडी बता दिया, ट्रेड साइकिल्स होते हैं, बिजनेस साइकिल्स होते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होता है इनकम का, अनएम्प्लॉयमेंट का फ्लक्चुएशंस होता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ये क्यों होता है, कैसे पता चलेगा हमें? ये सब पता चलेगा हम लोगों को जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो, ठीक है। ओके, ओके, इज इट क्लियर? या इज इट क्लियर टिल दिस मच? यस सर। ओके। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स क्या है? देखो, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर जस्टिफाइड फॉर इंडिविजुअल्स, बट दे आर नॉट जस्टिसेबल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। एग्जांपल, इंक्रीजिंग प्राइसेस गुड्स फॉर फॉर्म्स बट नॉट फॉर सेविंग इज गुड। अच्छा, ये क्या है देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? इंक्रीजिंग प्राइसेस
गुड फॉर फॉर्म्स बट नॉट फॉर द सेविंग। अब एकदम सिंपल चीज है। अब मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स क्या है, मतलब कभी कल क्या होता है ना, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस होता है कभी कल, मतलब जो चीज एक आदमी के लिए सही है वो चीज दूसरे आदमी के लिए सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक फॉर्म के बारे में देख लो, ठीक है। एक फॉर्म अगर प्राइस बढ़ाता है, तो फॉर्म अगर प्राइस बढ़ाएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट काफी अच्छा कमा सकती है ना अगर प्राइसेस बढ़े तो, ठीक है ना। लेकिन प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जो कंज्यूमर होता है उनको तो ज्यादा प्राइसेस देना पड़ता है। अगर वो ज्यादा प्राइसेस अपना गुड्स एंड सर्विसेज में ही खर्च कर देंगे तो वो सेव क्या करेंगे, वो सेव तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पैराडॉक्स वगैरह छिपा हुआ है बहुत सारा। हो सकता है एक, मतलब एक जो फैक्टर है, एक जो वेरिएबल है वो बढ़ रहा हो तो वो एक आदमी को बहुत ही अच्छा कर रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है वो दूसरे दूसरे लोगों को हार्म कर रहा हो। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो बेनिफिट में चले जाएंगे और कंज्यूमर जो है उनको डिसएडवांटेज हो जाएगा जब भी प्राइस बढ़ेगा तो, ठीक है। हेल्पफुल इन फर्दरिंग द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ थ्योरीज वगैरह है, इनको आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो वहां पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करेगा आके, वहां पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कल क्या होता है, जैसे कि कुछ एरियाज में कंजम्पशन हैबिट बदल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया है इंडिया में, बहुत ही छोटा सा एरिया है, वहां का कंजम्पशन हैबिट बढ़ रहा है। तो अब वहां का कंजम्पशन हैबिट्स हो सकता है वो चाइना के बॉर्डर पे, हो सकता है नेपाल के बॉर्डर पे, और उधर से इम्पैक्ट आ रहा हो। लेकिन हमें ऐसा लग रहा हो कि ये जो एरिया है, ये एरिया का लोग जो है, हम लोग माइक्रो लेवल पे ही डील करेंगे। माइक्रो लेवल पे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम लोग को कभी कल मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, कभी कल तुम देखते होगे जैसे बॉर्डर एरियाज वगैरह होता है ना, वहां पे क्या होता है, सपोज तुम नेपाल के बॉर्डर एरिया साइड में चले जाओगे, यही हमारे बिहार में या यूपी में गोरखपुर जो लगता है बॉर्डर एरिया, वहां पे भी तुम चले जाओगे तो वहां पे नेपाल का करेंसी यूज होता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में बॉर्डर एरियाज में नेपाल का करेंसी यूज होता है। तो अब वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, मतलब ये पैसा को यूज करना या गुड्स एंड सर्विसेज का वहां पे दाम बढ़ जाना घट जाना, हो सकता है ये इंडियन करेंसी की वजह से ना हो सकता है ये नेपाली करेंसी की वजह से हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी कल हमें माइक्रो पे ही नहीं रह के, ये माइक्रो को एक्सटेंड करके मैक्रो पे भी मतलब ये मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जहां पे आपको सोल्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं देगा ना, तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, आप ले जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे कि अच्छा एक ही एरिया इम्पैक्ट हो रहा हो, लेकिन ये एक एरिया इम्पैक्ट होने का रीजन जो है आपको मैक्रो इकोनॉमी में जाके पता लगे, ठीक है। इज इट क्लियर? या इज इट क्लियर टिल दिस मच? ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आज तो मेरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं स्लो ही जा रहा हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए एटलीस्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल, ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको जनरल प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है जानना है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा, ठीक है। अब स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, अब एक एक हाउस होल्ड के बारे में जानना है, एक इंडिविजुअल के बारे में जानना है। जैसे मेरा ही इनकम के बारे में पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ कहाँ से मैं कमा रहा हूँ, कैसे कैसे मैं कमा रहा हूँ, तो ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलेगा। या मैं कितने घंटे काम करूं, मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ, मैं कितने घंटे काम करूं कि मैं सबसे ज्यादा इनकम कमा सकता हूँ, तो आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब चीजें आती हैं, क्योंकि बस एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि एक पूरा कंट्री में सपोज 100 मशीन लगा हुआ है, 100 मशीन्स लगा हुआ है, ठीक है ना। कैपिटल गुड जो है 100 है, 100 के नंबर में। और तुम्हें पता लगाना है कि ये सारी मशीनें जो है कितने घंटे काम करेगी, ताकि हमारा जो नेशनल इनकम है ये बढ़ के सपोज 10% हो जाएगा, 10% के ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, या 20% के ग्रोथ रेट से बढ़ेगा हमारा नेशनल इनकम, तो फिर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जब आप एक इंडिविजुअल से पढ़ोगे, जब आप एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ोगे या एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ोगे, तब आपको फिर माइक्रो में पढ़ना पड़ेगा। या आपको अगर पूरा कंट्री का आपको पढ़ना है सब कुछ, जैसे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ाना है,
कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो फिर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। अब ये जो भी मैंने आपको बताया ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे करवाएगा, जो भी बताया है आगे आने वाले चैप्टर में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में बता क्या रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना क्या चाह रहा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन हो गया, आपको अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। अब ग्रॉस, अब ये देख लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सी दिस एवरीबॉडी, ओके। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इसके अंडर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, जब तुम डिटेल में जाओगे, जब अदर सेमेस्टर्स में भी जाओगे, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस वाले सेमेस्टर में कुछ ही पोर्शंस तुम्हारे कवर हो, लेकिन अगले सेमेस्टर में फिर तुम्हें और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा जो सब्जेक्ट है और ज्यादा टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें नहीं है, हो सकता है तुम्हारे मास्टर्स लेवल पे हो, या हो सकता है तुम्हारे दूसरे सेमेस्टर में हो। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को तुम देखोगे ध्यान से, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा थ्योरी हमें पढ़ना है। इसमें थ्योरी ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, जिसमें हमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स पढ़ना है, उसके अंदर कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, कॉन्सिक्वेंसेस, रेमेडियल मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ना है। फिर थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना है, डिमांड फॉर इन्फ्लेशन, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ये पढ़ना है बोल के। ठीक है। ऐसे डिवाइड किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तुम लोगों ने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा होगा तो उसका भी डिवीजन ऐसे ही देखोगे, कंज्यूमर थ्योरी होगा, प्रोडक्शन थ्योरी होगा, उसमें भी ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी डिवीजन है। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, मैंने जो आपको अभी तक लेक्चर दिया, जितना भी मैंने बोला, वो सब ये सब डिफरेंसेस में लिखे हुए हैं, जितना भी मैंने आपको बताया। Okay, difference in the degree of aggregation, difference in objective, difference in subject matter, difference of methodology of study। ठीक है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस, उसके बाद डिफरेंट एजम्पशंस, डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम, मोर्टल एंड इमोर्टल सब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे कि मोर्टल एंड इमोर्टल सब्जेक्ट क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स आर मोर्टल, microeconomics tool is man who is mortal, macroeconomics is concerned with aggregates, the tool of the tool of its study is society never ends, hence macroeconomics is immortal। ठीक है। though both are different, microeconomics depends on macroeconomics and macroeconomics in turn on microeconomics। देखो, दोनों जो सब्जेक्ट है ना, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है। एक को नाम दिया गया है मोर्टल और एक को नाम दिया है इमोर्टल। अब मोर्टल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लिमिटेड टॉपिक के बारे में पढ़ोगे, इसलिए वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, मर जाता है। मतलब आपने सपोज सोसाइटी में सपोज 100 इंडिविजुअल है, 100 इंडिविजुअल के बारे में आपने पढ़ लिया, बात खत्म, वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अब जब एक इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो, पूरा होल इकोनॉमी के बारे में, तो यहाँ पे तो मतलब अनगिनत लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं। सारे लोगों को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, एक एक करके तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो आप ओवरऑल लोगों को आप क्या करोगे, जैसे आप एक सैंपल बनाओगे, जैसे कि एक सोसाइटी से ले लिया 10 लोगों को, एक डिस्ट्रिक्ट से ले लिया 20 लोगों को, ऐसे करके आप सैंपल कलेक्ट करोगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद आप पता लगाओगे कि अच्छा ये सोसाइटी में ये डिफरेंस है। आप पता लगा लोगे कि अच्छा ऑन एन एवरेज जो इनकम है हमारे कंट्री का ये है। लेकिन एक सोसाइटी का इनकम जानने से आप तो पूरा कंट्री का इनकम तो नहीं जान सकते। ठीक है ना, आप ये तो नहीं जान सकते। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता रहा हूँ, आप दिल्ली का इनकम जान के तो आप ये नहीं बता सकते ना कि अच्छा मुंबई में भी तो गरीबी लोग रहते हैं, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते। या आप बिहार का जैसे बिहार है, बिहार में जैसे बहुत सारे लोगों का इनकम जो है बहुत ज्यादा कम है, वहां पे बिहार और यूपी में लेबर की जनसंख्या काफी ज्यादा है। और जब आप स्टडी करने जाओगे तो आपको हो सकता है कि सैंपल सर्वे में लेबर का ही इंडिविजुअल्स जो है ज्यादा मिले आपको। तो आप फिर ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि अच्छा यूपी और बिहार के लोग जो है गरीबी है। या आप ये नहीं बता सकते यूपी और बिहार के बारे में ये पढ़ के ये नहीं बता सकते कि अच्छा इंडिया के लोग जो है वो गरीब ही है।
ऐसे तो नहीं कंक्लूजन निकाल सकते ना। आपको तो दिल्ली भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, आपको मुंबई भी लेना पड़ेगा, आपको गुजरात भी लेना पड़ेगा, आपको तमिलनाडु भी लेना पड़ेगा, आपको गोवा भी लेना पड़ेगा, तभी तो आप जाके कुछ बता पाओगे कि अच्छा इसका जो नेशनल इनकम है इस कंट्री का ये है। आप 2 स्टेट का तो पढ़ के नहीं बता सकते ना, या आप खाली बिहार का ही ले लोगे तो वो भी एक इंडिविजुअल लेवल पे ही आ गया, तो दैट विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर बिहार का ही लेबर के बारे में पढ़ना है तो वो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आ जाएगा। लेकिन जब आप पूरा इकोनॉमी का पढ़ोगे तब जाके वो आपको आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेबर के बारे में क्या पढ़ोगे, वही कि लेबर का जो इनकम है पिछले 5 सालों में कितना बढ़ गया है, पिछले 10 सालों में कितना बढ़ गया है, लेबर जो है अभी भी अमीर है अभी भी गरीब है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, यही सब पढ़ना रहता है हम लोगों को। अभी भी पॉवर्टी लेवल क्या है, अभी भी कितने लोग अनएम्प्लॉयड है कंट्री में, अभी अब गवर्नमेंट को कैसा स्कीम लेके आना चाहिए जिससे जो है काफी सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाए, काफी सारी गरीबी जो है वो हट जाए हमारी कंट्री की। ठीक है, कैसा स्कीम लेके आना, तो ये सब स्टडी होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम समझ लो कि कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं, इनको ठीक कैसे करना है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स लगा के ठीक करना है। जो बजट बनता है ना, बजट बजट का 70% हिस्सा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैक्रो लेवल पे जो है सोल्यूशन को डील करना चाहते हैं, माइक्रो लेवल पे डील नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तुम खुद सोच लो ना, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो वो क्या बस मेरे फैमिली के लिए बनाएगी, बेसिकली मेरे फैमिली को देख के बनाएगी, अच्छा ठीक है ये सर का जो फैमिली है इतना पुअर है, ये है वो है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बजट में बना देता हूँ ये फैमिली को देख के, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट देखेगा कि अच्छा सारा जो फैमिलीज है पूरा कंट्री में इनका इनकम क्या है। ठीक है, ये सारा फैमिलीज को देखेगा, सारा जितना सारा भी फैमिली होगा, जितना सारा भी हाउस होल्ड होगा, सबको कंसिडरेशन में लेगा, उसके बाद पॉलिसी बनाएगा। ये जो पॉलिसी बन के आएगा ना, इनको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इज इट क्लियर टिल दिस मच? यस, इज इट क्लियर? Okay, then we'll continue in the next class then. Okay, ठीक है? Okay, sir. Okay, thank you everyone. Thank you for joining the class. Thank you. Thank you. Thank you.